शुरू कर ले. Okay, so the next problem, design Turing machine Vilas तेलुगुना पाठव ना जागा बसले होता design Turing machine to copy the string in reverse. To copy the string in reverse. Suppose the string is A, B, B, A, A. If it is to be copied in reverse. Now, of course, even if we plan to copy it from A, you will have to remember the length, which cannot be done. Instead of that, you mark this symbol and copy it ahead. Okay. So, initially we are at this point. We should keep on moving to the right till we hit semicolon. And we should come to the left of semicolon. If we get A, it is recovery type, so mark it as X and then move to right and keep on moving to the right till you reach space. When you get space, you should write A at that point and keep on moving to the left till semicolon. I am doing it in 2 steps क्योंकि A छोड़ के semicolon तक और फिर XY छोड़ के A या B तक. That will be the policy. Then so leave X and you hit A again. Mark it by X. But for right movement, I am not putting any condition because I will be reaching straight away the space. When you hit space, write A and keep on moving to the left till you hit semicolon. After that, keep on moving to the left, skipping all X and Y till you reach A or B. Here we are getting B, mark it as Y and keep on moving to the right till you reach space. On space, you should write B and then keep on moving to the left till semicolon. Then skip all X and Y till you reach A or B. When you get B, mark it as Y and keep on moving to the right till you hit space. On space, write B and keep on moving to the left till semicolon. Skip all X and Y till you hit A or B. A should be converted to X. And then keep on moving to the right till you get the space.
on space, write A because we had marked X, and then keep on moving to the left till semicolon. Keep on moving to the left till you hit A or B. Instead of that, you are reaching semicolon. Okay, if you reach semicolon, that means the string has been copied fully. Now start moving towards right. So you move to the right. You get X, convert it to A and move to right. You get Y, convert it to B and move to right. You get Y, convert it to B and move to right. You get X, convert it to A and move to right. You get X, convert it to A and move to right. You get semicolon, and from that point onwards keep on moving to the right till you reach space. Write semicolon and halt. Job is done. This will be the procedure by which the string is to be copied in reverse. Okay? Make a note. नहीं यार, क्योंकि when you are coming to the left, तो आप A B छोड़ के आप एक स्टेप में कैसे लिखोगे? You will write it as, if you get A, write it as A, move to left. If you get semicolon, write it as semicolon, move to left. Like that, if you carry out the procedure, then what will happen? If you get X, you move to left. If you get Y, move to left. लेकिन उसी स्टेट में आपने ये भी लिखा है कि A मिला तो लेफ्ट में जाओ, तो वो इस A या B पे रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हो आप कि A मिला या B मिला तो लेफ्ट को जाओ, तो वो XY को भी लेफ्ट को ही जाना है और फिर AB को भी लेफ्ट को ही जाएगा, तो इट विल कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट. इसलिए स्टेप बाय स्टेप करके ही स्किप द जनरेटेड स्ट्रिंग, स्किप द मार्क्ड स्ट्रिंग, रीच द सिंबल, मार्क इट एंड देन राइट मूवमेंट में मेरा कोई कंडीशन नहीं है टिल स्पेस. लॉजिक बता दिया तो हो जाना चाहिए. It will be A, B, X, Y, space, semicolon. The very first step says that A मिला तो A लिख के राइट में स्टेइंग इन Q0, B मिला तो B लिख के राइट में स्टेइंग इन Q0. X नहीं मिल सकता, Y नहीं मिल सकता, स्पेस नहीं मिल सकती, सेमीकोलन मिलेगा तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q1. हम शायद कभी भी इस स्टेप को फिर से नहीं आएंगे. We will always first of all reach the end and then the process begins actually. So in Q1 सेमीकोलन के लेफ्ट में अगर A मिला तो उसे X लिख के राइट में चले जाएंगे इन Q2. That was last stage. Okay? अब हमारा स्टेप था कि X या Y किसी A को मार्क किया, A या B को X या Y मार्क किया, तो कीप ऑन मूविंग टू द राइट, जो भी बीच में आए सबको छोड़ के टिल स्पेस इंक्लूडिंग सेमीकोलन. यू विल हैव टू स्किप एवरीथिंग. अभी इमीडिएटली तो शायद मुझे पहली बार सेमीकोलन मिलेगा, उसे छोड़ के राइट में, और
स्पेस मिलेगी तो ए लिख के लेफ्ट में इन Q3, पहली बार फर्स्ट। अभी हमारा एंडिंग विथ ए ही था ना पहली बार, या Q3 में आओगे तो यू विल हैव टू कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल यू रीच सेमीकोलन। सो वो जनरेटेड, सो दिस इज लेफ्ट मूवमेंट ऑन जनरेटेड स्ट्रिंग, this was right movement till space, this was mark last, so to mark the last symbol. Okay, so this we have moved till the space, सेमीकोलन को छोड़ के भी। स्पेस मिलने पर ए लिख के लेफ्ट में Q3, Q3's job is to move towards left on the generated string till semicolon. सो ए मिला, जनरेटेड स्ट्रिंग में एक्स वाई नहीं होते, ओरिजिनल स्ट्रिंग में एक्स वाई हो सकते हैं। सो जनरेटेड स्ट्रिंग में ए मिला तो ए लिख के लेफ्ट में Q3, बी मिला तो बी लिख के लेफ्ट में Q3, एक्स वाई स्पेस नहीं मिल सकती। सेमीकोलन मिला तो स्टेट चेंज करेंगे हम Q4, क्योंकि हमने कहा है पहले सेमीकोलन तक लेफ्ट में आते वक्त, फिर एक्स वाई छोड़ के ए या बी तक। Q4 में इट इज लेफ्ट मूवमेंट ऑन मार्क्ड स्ट्रिंग। ओके, उसमें x मिला तो x लिख के लेफ्ट में Q4, y मिला तो y लिख के लेफ्ट में Q4, और अगर a मिला तो उसे x लिख के राइट में Q2। ओके, फिर Q2 में हमें x मिलेगा तो x लिख के राइट में Q2, y मिला तो y लिख के राइट में Q2, और फिर ये जो होंगे वो जनरेटेड एज एंड बीज होंगे, उन्हें छोड़ के राइट में, b मिला तो b लिख के राइट में टिल स्पेस, और अभी a मार्क करके। सो दिस वाज टिल स्पेस फॉर मार्किंग a, फॉर राइटिंग a, ऐसा वो कंसेप्ट था। लेकिन अगर लास्ट सिंबल a होने के बजाय b होता था तो इट वुड हैव बीन रिटन एज y and we should move towards right, but not in this step, क्योंकि this was for a, it will be Q5. In Q5 it is same as Q2, you will have to move till space but to write b, for b. So a मिला तो a लिख के राइट में Q5, b मिला तो b लिख के राइट में Q5, x मिला तो x लिख के राइट में Q5, y मिला तो y लिख के राइट में Q5, सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में Q5, स्पेस मिला तो b लिख के लेफ्ट में टू Q3. Q3 will take me towards left on the generated, that is till semicolon, लेफ्ट में आते वक्त. This is taking me on the marked string till A और B. So XY को छोड़ के लेफ्ट में A मिला तो X लिख के राइट में Q2 और B मिला तो Y लिख के राइट में Q5. Getting it? लेफ्ट में आते वक्त तो स्पेस कभी मिल ही नहीं सकती. एंड यू विल फाइंड दैट आई एम नॉट कमिंग बैक टू Q1 एनी टाइम, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है इस केस में, क्योंकि वो यहीं से जाएगा. लेफ्ट में आते वक्त कहाँ रुक रहे हैं वहीं से ट्रांसफर होने वाला है. सो इवन Q1 में और कुछ नहीं होने वाला. अब जब हम लेफ्ट पे आ रहे हैं आफ्टर स्किपिंग X एंड Y, तो लास्ट में हमारे पास कंडीशन है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग A और B यू रीच सेमीकोलन. तो उसके लिए सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में नाउ आई विल गो टू Q6 एंड इन Q6 इट इज राइट मूवमेंट टू रिकवर. रिकवर का मतलब है X मिला तो A लिख के राइट में Q6, Y मिला तो B लिख के राइट में Q6, सेमीकोलन भी मिलेगा. ये लास्ट स्टेप में कर रहा हूं. यहां पे मैंने ये तो एक बार दिखाया मैंने, फिर आई वेंट ऑल द वे टिल स्पेस. तो उसके बाद सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में Q6. उसके बाद जनरेटेड एज एंड बीज मिलेंगे. ए मिला तो ए लिख के राइट में Q6, बी मिला तो बी लिख के राइट में Q6 और स्पेस मिलने पर सेमीकोलन लिख के हॉल्ट.
So we'll complete the copy of the string in reverse. Make a note. Q0 will take us till the end. Q1 will mark the last symbol. Q2 will take us all the way to the right till space to write A. Q3 will take us till the end of the first one, that is till semicolon. Q4 will take us back to the last A or B. Q5 will take us to the right till space to write B. And Q6 will do the job of recovering and closing the copy. प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा सोच के करना होगा. थंब रूल्स वोंट वर्क and need not be a unique solution also. That is also a fact. Solution can vary slightly. Of course, here you have no choice but to come from the end only. लेकिन अभी हमने ये तो नहीं कहा है कि the copy should be always ahead. I could have started with the first symbol and written it before. See, मेरे पास string था A B B A A, ना? क्या था string? वही. So I could have started with A to be written here. Go to the right and write it. So ये सब कुछ उल्टा हो जाता था उसके से. But logic would have been same. सभी x y छोड़ के जब semicolon मिलता था तो उल्टा आने आ जाओ. Recover, come to the starting space and put semicolon and halt. बट देन इसका रिवर्स कॉपी पहले स्टोर होता था उसका. Next will be Turing machine to add two unary numbers. Two unary numbers are to be added. They are stored on the tape one after the other. Unary is a single symbol representation. For example, if it is 1, 2, 3, 4, 4 and 3 to be added. Result will be 7 to be stored afterwards, again in the unary form. We are initially here. Logically, I would say that mark first one by star. And then keep on moving to the right till you reach space. Space पे 1 लिख के keep on moving towards left till you reach star. So this was till space. This was till star. Then you take one step towards right.
you will get 1. Mark it by star. And then keep on moving towards right till space. Write 1. And then keep on moving towards left till star. Move to the right of star, mark it by star, and then keep on moving to the right till space. Then on that space, you're finished with this. On that space, you will have to write 1. And then keep on moving towards left till star. And then move to the right of star. And then keep on moving to the right till space. Write it as 1. And then keep on moving to the left till star. Move 1 step to the right of star, and you will find semicolon. Actually the process continues after this. लेकिन यहाँ पे एक स्टेट चेंज आएगा which will tell me that the first number has been copied, and now I will start copying the second one. Okay, so next step में this is a state change, remember, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो the process will never end, क्योंकि फिर वो सेकंड कॉपी करेगा और फिर वो मार्क जो है वो उसे कॉपी करता रहेगा, एंड इट विल बी अ हॉल्टिंग प्रॉब्लम. व्हेन टू स्टॉप, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू ब्रेक इट. पहला कॉपी हो जाने पर एक स्टेट बदल लो, फिर से वही सब कुछ करना है, फिर से राइट में जाना है स्पेस तक, वहां 1 लिखना है, जैसे कि यहां से. So again I will say move to the right till space. लेकिन मैंने सेमीकोलन पे स्टेट चेंज किया है. अब जब मुझे फिर से यही सिचुएशन आएगी स्टार के राइट में सेमीकोलन, तो एट दैट टाइम आई कम टू नो दैट द सेकंड नंबर आल्सो हैज बीन कॉपीड. एक्चुअली इट इज अ मल्टीपल कॉपी. यू विल हैव टू कॉपी बोथ. Okay, so it will be 4 plus 3, it will become 7. Copy first number, copy second, and close. Okay, so see how the repetition will go. I will be using the symbol 1 star space semicolon. Q0 में 1 मिला तो स्टार लिख के राइट में Q1. Q1's जॉब इज 1 मिला तो 1 लिख के राइट में Q1, सेमीकोलन मिलेगा, दैट इज वेयर द फर्स्ट नंबर विल एंड. सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में Q1, फिर से वंस मिलेंगे विच इज द सेकंड नंबर, स्किप दैट, फिर सेमीकोलन मिलेगा, स्किप दैट टिल यू रीच स्पेस. स्पेस मिला तो 1 लिख के लेफ्ट में Q2. राइट में जाते वक्त स्टार कभी मिल ही नहीं सकता. Q2 में यू वांट टू मूव टू द लेफ्ट, 1 मिला तो 1 लिख के लेफ्ट में Q2, जनरेटेड स्किप करेंगे. सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q2,
फिर सेकंड नंबर मिलेगा, स्किप इट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टिल सेमीकोलन, दैट इज द एंड ऑफ द फर्स्ट वन. फिर वंस मिलेंगे विच आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर, स्किप देम मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टिल यू रीच स्टार. स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में बैक टू Q0. लेफ्ट में आते वक्त स्पेस नहीं मिल सकती. ये चलता रहेगा. इट विल अगेन मार्क द फर्स्ट वन बाय स्टार, विल टेक अस ऑल द वे टू द राइट टिल स्पेस, स्पेस पे वन लिख के इट विल टेक यू ऑल द वे टू द लेफ्ट टिल स्टार. सो दिस इज राइट टिल स्पेस एंड दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट टिल स्टार. और एक वक्त ऐसे आएगा कि स्टार के राइट में जब हम जाते हैं, स्टार को स्टार लिख के राइट में इन Q0, तो वहां पे मुझे सेमीकोलन मिलेगा. दैट इज द इंडिकेशन दैट द फर्स्ट नंबर हैज बीन कॉपीड फुल्ली. इन दैट केस सेमीकोलन को छोड़ के हम राइट में चले जाएंगे एंड वी आर इन Q3. एंड अगेन इन Q3, दैट इज आई एम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड वन. I will mark 1 by star, move to right, staying and go to Q4. Q4 will behave just like Q1. Q4 में 1 मिला तो 1 लिख के राइट में Q4, सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में, दैट इज द एंड ऑफ द सेकंड नंबर. और स्पेस मिला तो 1 लिख के लेफ्ट में Q5. राइट में जाते वक्त स्टार नहीं मिल सकता. Q5 में लेफ्ट में आते वक्त स्किप द जनरेटेड, ओके, स्किप सेमीकोलन, और स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में, दिस टाइम Q3. और फिर जब Q3 में मुझे सेमीकोलन मिलेगा तो सेमीकोलन लिख के राइट में आई विल बी इन Q6. सो दिस इज एज गुड एज कॉपी फर्स्ट, दिस इज कॉपी सेकंड, लॉजिकली जस्ट द सेम. ओके, then in Q6 skip all ones moving to the right, skip all ones moving to the right till you reach space. space मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q7. this will be close addition. then in Q7 सभी वंस को छोड़ के लेफ्ट में चले जाओ, सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन लिख के Q8. दिस इज लेफ्ट मूवमेंट ऑन एडिशन. Q8 में सभी स्टार्स मिलेंगे, राइट देम एज 1, कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट, सेमीकोलन मिलने पर स्टेट चेंज कर दो, गो टू Q9. दिस विल बी टर्म्ड एज लेफ्ट मूवमेंट रिकवर सेकंड. Q9 में स्टार्स को 1 करते हुए लेफ्ट में चलेंगे, सेमीकोलन मिलने पर हॉल्ट. दैट इज कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट, रिकवर फर्स्ट. एडिशन. इसके बाद हमें करना है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हो सके तो डिवीजन. डिवीजन तक तो खैर नहीं जाएंगे, बट मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा. सब्ट्रैक्शन ऑल्सो हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. By chance in the exam, if they just say that write design Turing machine to add 2 numbers वगैरह, we say that the numbers, considering the numbers to be unary and do it. ये इतना झंझट. एक तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो नंबर्स डेसिमल या बाइनरी होते थे तो यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप 2 डिजिट्स और फिर उनका एडिशन, और 2 डिजिट्स पिकअप करने के लिए 2 अलग अलग पोजीशन पे जाना पड़ता. सो इट वोंट बी दैट इजी. जितना इजी हमारा मूर मिली था एडिशन ऑफ बाइनरी, उतना मुश्किल ये होगा. मुश्किल मतलब आपको फिर वो मल्टी टेप से करके आसान हो सकता है, सिंगल टेप पे मुश्किल होगा. गो टू द एंड. एक तो टेप पे द नंबर्स विल बी स्टोर्ड फ्रॉम MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो योर LSB वैल्यू इज एट द एंड, सो यू विल हैव टू गो टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वन, पिक अप द डिजिट. 0 होगा तो X मार्क कर दो, याद रखो कि वो 0 है. गो टू द एंड ऑफ सेकंड नंबर, वहां से लास्ट डिजिट पिकअप करो. वो क्या है देखो, उसके डिपेंडेंट तुम्हारे स्टेट्स होंगे. फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1,
फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 0, फर्स्ट 1, सेकंड 0, लाइक दैट 4 स्टेट्स होंगे। फिर उसका एडिशन, और फिर कैरी है कैरी नहीं है, मतलब 4 और 4 8 स्टेट्स तो इसी में जाएंगे। फिर मूवमेंट बैक, और फिर स्पेस ढूंढ के उधर लिखना है, और वो और मुश्किल होगा क्योंकि आपको लेंथ पता नहीं है कितनी होगी। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अहेड आई विल प्रीफर टू राइट इट बिफोर, क्योंकि वो पहले नंबर के पहले लिखा तो वो ऑटोमेटिकली LSB स्टोर होता है ना, तो उसके पहले पहले लिखते जाए लाइक दैट। लेकिन इट्स नॉट वर्थ, 8 मार्क के लिए वो नहीं कर सकते हम। 8 मार्क के लिए यहाँ का मल्टीप्लीकेशन तक हम आसानी से जा सकते। हो हम तो लिहितो ना अजून, मला जागा तो पाहिजे लिहायला। To subtract unary numbers, assumption first number is greater than or equal to second number. If second number is greater, you can always copy first number ahead of second and then follow the procedure. Okay, so इसलिए 2 केसेस कंसिडर नहीं करेंगे। और वैसे भी यूनरी में साइन इंडिकेट की ही नहीं जा सकती, दैट इज अनदर फैक्टर। साइन बिट ही नहीं है आपके पास, नहीं है ना। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3, कसं करणार? हाउ डू वी डू इट? हाँ from the second string. हाँ Until the second string gets end. हाँ So mark this first of second string and then first of the first string. हाँ, मतलब एक यहाँ पे मार्क करो, एक यहाँ पे, दिस 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 दिस। But to start from the second string. क्यों चलेगा ना? इसको मार्क किया और मुझे अगर पता चला कि यह सेमीकोलन तक पहुंच गए तो इसको आगे लिखेंगे 1। आई विल कम बैक, मार्क दिस, राइट 1, स्टॉप। ये पूरा ड्रॉ करो, देखते हैं, एक बार लिखते हैं, फिर इफ यू लॉजिक समझ में आ गया, मार्क डिजिट फ्रॉम द फर्स्ट वन, गो टू द सेकंड, mark 1 digit, come back, mark like that, 1 star space semicolon। अभी सिमुलेशन नहीं है हमारे सामने, you will have to imagine it। I am at the beginning on the first digit, Q0 में 1 मिलने पर स्टार लिख के राइट में Q1। Q1's responsibility is to skip all ones moving to the right। सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन लिख के राइट में Q2। Q2 में, so I am on the second number। सेकंड नंबर में 1 मिलेगा तो 1 मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3। ओके, Q3 में सेमीकोलन मिलेगा, आई विल बी कमिंग टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वन। सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q4। Q4 में सभी वंस को छोड़ के लेफ्ट में, और फिर स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0। माय फर्स्ट पास इज ओवर। दिस इज मार्क 1 फ्रॉम फर्स्ट नंबर। अरे ऊपर ये मार्क 1 फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज मूव राइट टिल एंड ऑफ फर्स्ट। ओके,
देन mark 1 from second Q2. This will be move left till end of first. Q4 में move left on first number till semicolon, till star. पहला पास हो गया. सेकंड पास में फिर एक बार 1 को मार्क किया स्टार से, सभी वंस को छोड़ के सेमीकोलन तक पहला नंबर स्किप किया. दूसरे में आने पर एक स्टार तो ऑलरेडी है, मतलब स्टार्स को छोड़ के भी राइट में जाना पड़ेगा, फिर जाके हमें 1 मिलेगा जिसे हम मार्क करेंगे. सेकंड नंबर पे पहला एक तो मार्क किया था स्टार से, उसके आगे 1 होगा, तो स्टार को छोड़ के राइट में टिल 1. मार्क इट बाय स्टार, कम टू द लेफ्ट. अब उस स्टार के लेफ्ट में भी स्टार मिल रहा है. टू कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वन आई विल हैव टू से Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3. अभी सेकंड स्टार लिखा ना, तो उसके लेफ्ट में आएगा तो स्टार ही मिलेगा, उसको छोड़ के भी सेमीकोलन तक आना पड़ेगा टू रीच द एंड ऑफ फर्स्ट वन. सभी स्टार्स को छोड़ के सेमीकोलन तक, सभी वंस को छोड़ के स्टार तक. ओके, स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0 मार्क, फिर सभी वंस छोड़ के एंड ऑफ द फर्स्ट वन. ओके, फिर सेकंड में सभी स्टार्स छोड़ के 1 पे स्टार, फिर लेफ्ट में आते वक्त सभी स्टार्स को छोड़ के सेमीकोलन तक, फिर सभी वंस को छोड़ के स्टार तक, एंड रिपीट. एक वक्त ऐसे आएगा जब मैंने फर्स्ट में से एक 1 को स्टार मार्क किया है, आई गो टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वन, सभी स्टार्स छोड़ के राइट में जा रहा हूं मैं टू मार्क 1 इन द सेकंड. लेकिन सेकंड में 1 मिलने के बजाय अगर मुझे सेमीकोलन मिला, दैट मीन्स सेकंड नंबर इज ओवर. तो अभी जो मार्क किया है उसको मैंने उसका कुछ किया ही नहीं है अभी तक हमने. सो व्हाट डू वी डू? ऑन सेमीकोलन आई चेंज द स्टेट एंड गो टू Q5, एंड इन Q5 नहीं, आगे चलो, ऑन स्पेस राइट 1 एंड मूव टू लेफ्ट इन Q6. गो अहेड. स्पेस मिलने पर 1 लिख के लेफ्ट में आ जाओ Q6. Q6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो हमने कॉपी किया है वो सभी वंस को छोड़ के लेफ्ट में चले जाएंगे टिल वी एनकाउंटर सेमीकोलन. सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में कहां आना है वो सोचना पड़ेगा. सी हियर आई एम सेइंग मूव टू द राइट टिल स्पेस. ओके, एंड दिस इज मूव टू द लेफ्ट टिल एंड ऑफ सेकंड. मुझे ये पता है जब मैं Q5 में आता हूं तो सेकंड नंबर हैज बीन फुल्ली मार्क्ड. व्हेन आई कम टू द एंड ऑफ सेकंड वन, तो आई शुड बी स्किपिंग द स्टार्स टू रीच एंड ऑफ फर्स्ट. वो कहां है? टिल द एंड ऑफ फर्स्ट, ये वाला. आई शुड गो टू Q3. Q3 will skip all the stars and on semicolon will shift to Q4. Q4 में सभी वंस को छोड़ के स्टार तक, फिर राइट में यहां तक, फिर 1 को मार्क करेंगे, यहां आएंगे, सभी वंस को छोड़ के सेमीकोलन तक. वी आर एट द सेकंड. सेकंड में स्टार्स को छोड़ के राइट में जाएंगे तो वो तो खत्म ही हो चुका है. सेमीकोलन मिलने पर वहां से हम यहां आ जाएंगे. देन वी विल हैव टू स्किप ऑल वंस मूविंग टू द राइट, क्योंकि वो जनरेटेड होंगे. उनको छोड़ के स्पेस 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 पे वी शुड बी राइटिंग 1 एंड मूव टू द लेफ्ट. सभी वंस को, जनरेटेड वंस को छोड़ के लेफ्ट तक टिल द एंड ऑफ सेकंड. सेमीकोलन मिलने पर Q3 में सभी स्टार्स छोड़ के लेफ्ट में Q4. Q4 में सभी वंस छोड़ के स्टार तक. स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0. Q0 में 1 मिला तो फिर से रिपीट. लेकिन एक वक्त ऐसे आएगा जब Q0 मतलब Q0 में स्टार के राइट में 1 मिलने के बजाय हमें सेमीकोलन मिले. दैट विल इंडिकेट दैट सभी डिजिट्स कॉपी हो चुके हैं. तो राइट में जाएंगे हम इन Q7, और फिर Q7 में सभी स्टार्स को छोड़ के राइट में. ओके, नहीं, फिर सेमीकोलन मिलता है, सेमीकोलन को छोड़ के राइट में. देन आई विल गेट 1 वंस को छोड़ के राइट में. स्पेस मिलने पर सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q8. दिस इज टू क्लोज
क्लोज सब्ट्रैक्शन। और फिर Q8 में सभी वंस को छोड़ के लेफ्ट में, और फिर सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन को छोड़ के लेफ्ट में Q9। दिस इज मूव लेफ्ट ऑन जनरेटेड नंबर्स ऑन सब्ट्रैक्शन। फिर Q9 में मुझे सेकंड नंबर मिलेगा जो कि मार्क हो चुका है, स्टार को 1 करते हुए लेफ्ट में चले जाएंगे इन Q9 टिल वी एनकाउंटर सेमीकोलन। सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q10। दिस विल बी मूव लेफ्ट, दैट इज रिकवर सेकंड। एंड Q10 में वही काम करना है, स्टार मिला तो 1 लिख के लेफ्ट में Q10 और सेमीकोलन मिला तो हॉल्ट। सब्ट्रैक्शन इज थ्रू। रिकवर फर्स्ट। सब्ट्रैक्शन। कुछ स्टेप्स सिमुलेशन के दिखाता हूं। आई विल टेक स्मॉल नंबर सो दैट जल्दी हो जाएगा वो। इट विल बी 1 2 3 -1 1। आई एम हियर इन स्टेट Q0। 1 मिला तो स्टार लिख के राइट में। दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ Q1। Q1 में सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में। आई मीन Q2। Q2 में 1 मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में। आई एम एट सेमीकोलन इन Q3। Q3 में सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन को छोड़ के Q4। और Q4 में विल मूव टू द लेफ्ट टिल वी रीच स्टार। स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में। आई मीन Q0। एक पास हो गया मेरा। Q0 में 1 मिलने पर स्टार लिख के राइट में Q1 एंड Q1 विल टेक मी टिल सेमीकोलन। सेमीकोलन को छोड़ के राइट में जब जाएंगे तो वी आर इन Q2 और Q2 हमें स्टार्स को छोड़ के 1 तक लेके जाएगा। Q2 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में टिल वी गेट 1। 1 मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में। So Q3 will take me till semicolon. Q4 will skip all ones till star. Q4 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में। We are in Q0. Q0 में 1 मिला तो स्टार लिख के राइट में। सेमीकोलन, दैट विल बी Q1। Q1 में सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में। वी आर इन Q2। Q2 सभी स्टार्स को छोड़ के चलता जाएगा और जब Q2 सेमीकोलन रीड करेगा तो Q5। ओके, एंड Q5 फिर हमें स्पेस तक लेके जाएगा और वहां 1 लिखेंगे हम। दैट इज हाउ द सिमुलेशन विल गो। लिख लो।
one of the very difficult type of problems, these subtraction, multiplication. ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं, बट एक स्टेप में बहुत कुछ करना, बट वन शुड नॉट डू दैट. लॉजिकली द स्टेप शुड बी वेरी क्लियर. क्या हुआ? टेक डाउन द टेबल. सिमुलेशन बाद में करो. One has to one symbols are to be marked. Bas. Now you can understand why I have made the assumption. If the second number would have been bigger than the first one, so I will have to take that in also account, and the states will increase. क्योंकि that will lead to a totally different path. क्योंकि फिर Q0 में सेमीकोलन मिलने पर Q7 में आई विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि वेदर सेकंड नंबर स्टिल एग्जिस्ट. यू आर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, जस्ट चेक के कॉलेज में कोई ये सॉल्व करता है. सिंगल स्ट्रोक विदाउट रेफरिंग टू एनीथिंग. क्या हुआ? नहीं हो रहा? क्या? Q0 में सेमीकोलन मतलब मैंने दिखाया उसके बाद ही ना. उसके बाद हम इस सेमीकोलन स्पेस तक आके 1 दिखाया ना तुमने. देन यू कम बैक स्पेस पे 1 लिखने के बाद यू कम बैक टिल द एंड ऑफ इस सेमीकोलन तक आते हो. तो उसके बाद तुम्हें Q3 that will take you skipping all the stars to the left to the end of first.
ओके फिर सेमीकोलन मिलने पर आप यहाँ आते हो, वहां आपको स्टार ही मिल रहा है। ओके सो योर नेक्स्ट स्टेप विल बी इस स्टार पे आ जाना, स्टार के राइट में जाओगे एंड यू विल बी इन Q0। फिर Q0 में सेमीकोलन मिलेगा तुम्हें, दैट विल टेक यू टू Q7 और Q7 विल टेक यू ऑल द वे टू द एंड एंड विल मार्क इट एज सेमीकोलन, विल क्लोज इट। कहाँ से Q0 में कैसे जाओगे? व्हाट इज Q6? इट इज Q6 इज सी आपने अभी जहां 1 लिखा है वहां से यू विल कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड नंबर, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट के एंड तक, और फिर फर्स्ट के 1 छोड़ के स्टार तक। सभी स्टार से है ना, तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन से स्टार पे रुकना है? ओ भैया तुम्हें स्टार मिलेगा उस केस में। सी यू हैव जस्ट रिटन 1, उस 1 के पहले 1s होंगे, ठीक है, अगर मल्टीपल आंसर आ रहा है तो। लेकिन फिर उसके पहले सेकंड नंबर में तो स्टार्स है ना मार्क किए हुए, तो तू Q0 में जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहां से। इसलिए कमिंग बैक स्टेप इज ऑलवेज एंड ऑफ सेकंड, एंड ऑफ फर्स्ट एंड देन स्टार इन द फर्स्ट। सो मुझे इसमें यह पता रहता है कि अगर स्टार मिला तो वो किसका है, सेकंड नंबर का स्टार है कि फर्स्ट का स्टार। Should we go ahead? Last problem for today, multiply. Multiply two unary numbers. But this problem says we have two equal numbers. हाँ So, but we will be writing one by default instead of. चल देख ले, नहीं होता। अरे मैंने सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे होगा? अगर आपको दोनों नंबर्स इक्वल मिलते हैं तो इन दैट केस सेकंड नंबर एंड होके जब आप पहले पे आते हो तो वहां पे आपको स्टार के राइट में सेमीकोलन मिलेगा, और आपने अभी तक एक भी डिजिट आगे नहीं लिखा है, बराबर है। Q7 विल टेक यू टू द स्पेस एंड विल पुट सेमीकोलन, तो इसमें सेकंड नंबर के सेमीकोलन के बाद एक सेमीकोलन ही आ जाता है, दैट इज 0। वो तुम्हारा नल स्ट्रिंकल वाला। Can anybody tell me the logic for multiplication? I want to perform 1, 2, 3, 4 into 1, 2, 3. It will be put first one as star and keep on moving to the right till the end of first one. Then move to the right. सेकंड नंबर पे मैं अभी हूं, I will mark it. And then I will say keep on moving to the right till space. वहां 1 लिखो and move to the left till semicolon. सभी वंस को छोड़ के लेफ्ट में आ जाओ टिल स्टार। स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में, ओके। फिर 1, 2, 3 स्टार, 1 मिला तो स्टार लिख के राइट में एंड कीप ऑन मूविंग टू द राइट टिल यू रीच स्पेस। स्पेस मिली तो 1 लिख के लेफ्ट में टिल सेमीकोलन। फिर 1 को छोड़ के लेफ्ट में टिल स्टार। स्टार मिलेगा तो स्टार के राइट में यू विल गेट 1।
उस 1 को स्टार करके कीप ऑन मूविंग टू द राइट टिल स्पेस, स्पेस पे 1 लिख के कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल सेमीकोलन. Then go till the star. Okay? फिर स्टार के राइट में हमारा प्रोसीजर ही वही था, गो टिल द स्टार, और स्टार के राइट में जो मिलेगा या कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल स्टार, स्टार के राइट में जाओ, वहां 1 मिलेगा, उसे स्टार करो और फिर राइट में जाओ. सो आई हैव कम टिल द स्टार एंड देन आई एम टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स राइट, और स्टार के राइट में 1 मिलने के बजाय मुझे मिला सेमीकोलन. ओके, एंड देन इन दैट केस आई विल मूव टू द लेफ्ट. उस स्टार को 1 करके फिर से लेफ्ट में, फिर से लेफ्ट में, फिर से लेफ्ट में. आई हैव रिकवर्ड द सेकंड. फिर सेमीकोलन के बाद कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल द फर्स्ट स्टार, देन मूव टू द राइट ऑफ दैट. You are at 1. Mark it by star. And then keep on moving to the right till semicolon. सेमीकोलन के बाद फिर से 1 पे अगेन कॉपी, मार्क इट एज स्टार, एंड देन कीप ऑन मूविंग टू द राइट टिल स्पेस. स्पेस मिलेगी तो फिर से 1 लिखो, एंड देन कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल सेमीकोलन. कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल स्टार, गो टू द राइट ऑफ स्टार, कीप ऑन कॉपिंग द सेकंड. इसमें से एक को मार्क करेंगे, सेकंड नंबर वी कॉपी, फिर रिकवर सेकंड, कम बैक टू द फर्स्ट, मार्क 1, गो टू द सेकंड, कॉपी सेकंड, recover second, come back to the first, park 1. So actually here 4 into 3 is interpreted as 3 plus 3 plus 3 plus 3 4 times. And when the first number ends, then the multiplication is through. Go till the end, put semicolon, and while coming back recover the simulation for. लिख लो क्योंकि ये तो शायद आपसे नहीं होगा. सब्ट्रैक्शन तो फिर भी हो सकता है. हाँ क्या को यार, ये मैं भी कर सकता था कि व्हेनेवर आई एम मूविंग टू द लेफ्ट इन द सेकंड वन, तो पहले वाले स्टार को 1 करो और फिर आगे वाले 1 को स्टार करके जाओ. वो कंफ्यूजिंग रहता है. क्यों ऐसा करें, जाने दो. वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरा एक स्टेट में ही रिकवर हो रहा है. वो स्टार का पोजीशन इधर उधर हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगी. अभी रिकवर, वैसे भी मुझे लेफ्ट में जाना ही है. वो तुम्हारे लॉजिक से भी मैं गया कि हर बार स्टार को 1 करता गया, तो भी स्टार के राइट में सेमीकोलन मिलने पर तुम क्या करोगे, स्टार छोड़ के लेफ्ट, स्टार को 1 करके लेफ्ट में, फिर 1 को छोड़ के 1 को 1 रखते हुए लेफ्ट में. तो उस वक्त मेरे पास सभी स्टार्स है तो मैं सभी को कन्वर्ट कर लूंगा. नॉट इवन 1 एक्स्ट्रा स्टेट इन दिस केस.